So let's begin with the discussion of QA sectional test 11 questions. देख लेते हैं एक बार जल्दी से. Let's start with the selection of question. Starting from question number 1, geometry you could have skipped it. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 2, I guess time speed distance you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 3, number system you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 4, seems like something from averages, I guess. Could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 5, कुछ तो है, पता नहीं, नंबर सिस्टम जैसा अजीब सा कुछ लग रहा है. Could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 6, function, skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 7, geometry. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 8, alligation mixture. Could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 9, I guess you could have skipped it for now. Number system से related है. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 10, geometry से related है. Coordinate you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 11, you could have attempted it. नहीं, एक second, number of triplets पूछा. You could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 12, geometry, skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 13, equation से related है, but skip it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 14, log, you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, log को भी इंक्लूड कर सकते हैं. Geometry could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 16, ratio and percentages, 100%. You should have skipped it. You should have selected it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 17, geometry, skip it for now. Question number 18, you could have skipped it for now because this is something related to inequalities and also. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 17 को भी Part 3 में डालना था. It's from geometry. Question number 19, quadratic equation. Seems like कि ऐसा शायद अपन ने कुछ किया हुआ है, so you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 20, time and work. As of now देख के लग रहा है कि you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 21, time and work, you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 22, functions, you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Yes, starting from first question, सबसे पहले कौन सा करना है? तो सेकंड. टोटल काउंट कितना है पार्ट 1 में? 8 क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. बताना है किसी को? नो यस सर. सर बता. यस सर बता दे. ठीक है, बता देते हैं. A swimming pool is 120 feet long. John and Terry start from opposite end at speed of 5 and 4 feet per second and swims for 15 minutes. How many times do they cross each other? पहली क्रॉसिंग के लिए कितना चलना पड़ेगा? 120 by 9. 120 feet. Ma'am, to and fro motion. हाँ सर, वो मैंने टाइम बता दिया था. बराबर. दूसरी मीटिंग के लिए कितना चलना पड़ेगा? 240 प्लस 240. टोटल बताइए. 240 360. 360. अच्छा, ओके. Every time you have to add 2L. 3 plus हमेशा 2D. 2L ऐड होता है. बराबर. हाँ सर. Then हाँ सर, इसमें वापस 2D ऐड होगा. 600 840. मुझे लगे AP बन गया. यस सर. यस सर. अब देखते हैं करना क्या है. देखो 5 की स्पीड से 15 मिनट इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. हाँ या ना? यस सर. यस सर. 4 की स्पीड से इतना किया होगा. कोई करके बताएगा कितना हो रहा है? I guess 4500, I guess 3600, I guess total it's 8100. 8100. हाँ सर. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर. नो सर. टोटल डिस्टेंस 120 होते ही एक मीटिंग हो जाती है, 360 होते ही 2 मीटिंग हो जाती है, 600 होते ही 3 मीटिंग हो जाती है, 840 होते ही 4 मीटिंग हो जाती है. 8100 पे कितना होगा? It's an AP with the last term being 8100, first term being 120, n minus 1 and a common difference of 240. हाँ या ना? यस सर. 7980 divided by 240 equal to n minus 1. हाँ या ना? यस सर. कोई करेगा ये या मैं ही करूँ? तो 33.2. सर 33.25. 34.25 का मतलब कितनी मीटिंग हुई होगी? 34.
That is the correct answer. सर एपी के बिना कर रहे थे ना तो ये 33 आ रहा था. तो क्यों कर रहे थे सर सर बोलिए बोलिए मैम, बोलिए, सुन रहा हूँ। अच्छा ओके सर मैंने इसको करा था 120/9 प्लस n इंटू 240/9 इज इक्वल्स टू 900 से और फिर मेरी n की वैल्यू आ गई थी 33.25 देख लेते हैं मैम वापस से। 120/9 प्लस n इंटू 240/9 इज इक्वल्स टू 900. 900, ठीक है। एन आपका यस 33 पॉइंट समथिंग आया होगा और उसमें आपने +1 कर दिया होगा। यस सर 33.25 ही आया था. बराबर, एक ही बात है मैम, क्यों है बता देता हूँ। एलसीएम 9 का और उधर ले जाओ, कितना हो गया? 8100. हाँ वही हो गया. ओके अब ये मेरा n क्यों आ रहा है और आपका मेरा n-1 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं 120 को फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ और आप अपना सीरीज ही 240 सेकंड टर्म से स्टार्ट कर रहे हो, ये डिफरेंस है। बाकी इक्वेशन एकदम ही सेम है। क्लियर है? यस सर. ओके Anyone else Yes, having a sir. doubt in this question can ask again, else we'll go ahead with the next one. No, sir. Anyone else, please? No, sir. No, sir. Okay, sorry. ठीक है, fine. So hope this is clear. Let's go ahead with the next one, please. 4, sir. Question number. Fourth. बताने का है किसी को? No, sir. sir. Yes, sir. मेरा Yes, sir. yes, आया था, sir. Sir, वो आई. क्या? क्या बोल रहे हो आगम? कुछ नहीं सर, बता दो प्लीज. 7 students appeared for an exam with a maximum marks of 100. The marks scored by the students in the exam were found to be 7 distinct integral values, and the arithmetic mean of their marks was 85, whereas the median of their marks was 90. यार ये arithmetic mean और median सब समझते हैं क्या? Yes, sir. यस सर. क्या होता है arithmetic median? क्या होता है? मिडिल वैल्यू. Middle value. और arithmetic mean? Mean is average. Average. यार अगर 7 लोगों का एवरेज 85 था तो सातों का सम कितना होगा? 596. हाँ 5 में. 5 595. ये समझ में आया? ये मैंने एवरेज को काम मिल लिया। मिडिल वैल्यू वाज 90, मतलब ये वैल्यू मेरा 90 था। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब बाकी 6 वैल्यूज को ऐड करके मेरे को लाना है 505। हाँ है ना? Yes, sir. यस ये सर. तीनों वैल्यूज 90 से बड़ी होंगी। आई वांट द डिफरेंस टू बी मैक्सिमम, तो इसको 100, इसको 99 और इसको 98 दे दूं क्या? यस सर. भाई डिफरेंस मैक्सिमम कब आएगा? जब सबसे बड़ा वैल्यू 100 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो 100 दे दो और सबके डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। कोई एक बार ऐड करके बताएगा ये अभी तक कितनी वैल्यूज हो गई चारों का सम? 387. 387. ओके फाइन। मेरे को इस वैल्यू और इस वैल्यू के डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है। इसको मैं ऑलरेडी मैक्सिमाइज कर चुका हूं। इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं या मैक्सिमाइज करूं डिफरेंस को बढ़ाने के लिए? Minimize. अगर इसको मिनिमाइज करना है तो बाकी दोनों वैल्यूज को मैक्सिमाइज कर दूं, 89 एंड 88। Yes, sir. यस सर. ठीक है, अभी एक बार इन 6 वैल्यूज का सम निकाल के बताएगा कोई? 564. 5 64. so 564. this should be 31. 31. difference 69. 69. clear to all? Yes, sir. Anyone having a doubt can ask please. Anyone? No, sir. पक्का किसी को डाउट नहीं? चले आगे। Yes, sir. No, sir. Yes, sir. 8. बताने का है किसी को? Yes, sir. यस सर. Aggregation there. Sorry to disturb, but just a question. Is it the same test जिसमें सबके कम स्कोर आए थे?
यस सर, ये वही वाला है। हाईएस्ट शायद 21 गया था आई गेस एज फार एज आई रिमेम्बर, और शायद 15 प्लस एक या दो बच्चों की थी, वही वाला टेस्ट है क्या? हाँ सर। बढ़िया। हाँ भाई 15 8 बताना है क्या किसी को? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। The volume of two containers A and B are 36 liters and 24 liters, which contain milk and water solution. If the entire quantity of these two solutions is mixed, the concentration of the milk in the resulting solution is 40%. 18 liters of each of the two solutions are mixed, then the amount of milk in the resulting solution is 15 liters. What is the concentration of 24 liters milk? ये बताने का? $36 liters वाले में A% मिल्क है, 24 liters वाले में B% मिल्क है। हाँ है ना? अभी मैंने Yes, क्या sir. किया? Yes, sir. मैंने पूरी क्वांटिटी मिक्स कर दी, तो एक 60 लीटर सोल्यूशन हो गया, जिसमें से 40% कॉन्सेंट्रेशन है मिल्क का, मतलब मिल्क है 24 लीटर्स। हाँ है ना? Yes, sir. और ये कैसे आ Yes. रहा है? when you are taking A% of 36 plus B% of 24. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. So if I'm solving, I'm taking 12 common in the numerator part. This is going to be 3, this is going to be 2, this is going to be 2. I'm making an equation 3A plus 2B equal to 200. कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। No, sir. So, When I'm taking 18 liters of A plus 18 liters of B, my total milk is 15. हाँ है ना? बोल देने का है ना? yes, sir. Taking 3 common, I'm getting the second equation is 6A plus 6B equal to 500. मेरे को पूछा है concentration of milk in liter, यानी B का वैल्यू निकालने का है, और अगर B का वैल्यू निकालने का है तो I'll multiply the first equation by 2. I'll have 6A plus 4B equal to 400. I'll subtract the two equations. I'll have 2B equal to 100, B equal to 50. किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, else we'll go ahead with the next one. सर No, एक sir. बार फिर से बता दो। मैम ये इक्वेशन समझ में, ये मैंने 36 लीटर में A% मिल्क अज्यूम किया, हाँ। 40 ये समझ में आ गया, ये हाँ। इक्वेशन समझ में आ गई क्या? हाँ ठीक है। इसमें से मैंने 12 कॉमन लेके ये इक्वेशन बना ली, कोई दिक्कत है क्या? क्या क्या सर? हाँ ठीक है ठीक है। सेकंड केस में आपने 18 लीटर्स A, तो 18 का A% प्लस 18 का B% और टोटल 15 लीटर मिल्क है। 18 का A%, अच्छा ठीक है। हाँ इससे इक्वेशन आगे कोई दिक्कत है क्या? नहीं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ठीक है। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो B का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं I've आगे। got the solution. Clear? यस। Just allow me 1 minute. Okay, fine. I hope that's clear. Let's go ahead to the next one. Next out, please. 14। बताने का है किसी को?
Yes, sir. Yes, sir. देखो अब लॉग का क्वेश्चन है, बहुत पहली बार ही उठा रहे हैं, बट कोशिश करके देखो, मेरे को नहीं लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। बता देते हैं क्या है। a इक्वल टू लॉग, यार इस समेशन 1 से n क्या लिखूं इसको? n N to n N plus 1 n by into 2. n plus 1 by 2. प्लस लॉग 2, हाँ है ना? Hmm. Yes. लॉग a प्लस लॉग b को लॉग a b लिख दूं क्या? हाँ, और a का वैल्यू है, अच्छा बेस देने का 10 लेता हूँ, a का वैल्यू है 2 से बड़ा 3 से छोटा। ठीक है, मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, इट्स लेस देन 3, हाँ है ना? yes, sir. लॉग Yes, अटैक, sir. n इज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर 100 इज लेस देन 1000, कोई दिक्कत? नहीं, no, sir. n और n प्लस 1 क्या होते हैं? दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। Hmm. ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है, 100 के आसपास कौन सा स्क्वायर आता है? 121. अरे 100, 81. 100 ही तो है यार, 100 की क्लोजेस्ट स्क्वायर तो 100 ही होगा ना? हाँ, yes, आपने sir. 100 के आसपास बोला. अरे तो 100 के आसपास 100 नहीं होता है क्या? ठीक है, सर. अब ये अगर 10 इंटू 10 करते हैं तो 100 आता है, 10 इंटू 9 करते हैं तो 100 से छोटा आता है, तो 10 इंटू 11 कर दूं? हाँ, मतलब n को मिनिमम 10 लेना पड़ेगा हाँ. ताकि 10 इंटू Yes, 11 sir. उससे बड़ा हो जाए। 1000 के आसपास कौन सा स्क्वायर आता है? 900. अरे भाई 32 का स्क्वायर याद नहीं है क्या तुम लोगों को? 1024. अगर 32 इंटू 32 करता हूं तो 1024 है, 32 इंटू 31 इंटू 32 करूंगा तो 992. तो n को मैक्सिमम 31 तक ले जा सकता हूं। 10 से 31 तक कितने नंबर होते हैं? 22. कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं, सर. Although a question on log, but it's easy enough to solve, right? This is something you could have attempted. As of now, what I feel is कि आप log उठाना चालू कर सकते हैं। log के क्वेश्चंस कभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। ये जितना log आप लोगों ने पढ़ा है, इंटरेस्ट में अगर आपने आधी सर्वेश्वर वहां पे सॉल्व किया ना, you'll be easily able to go through the question. Is this clear? Shall we go ahead? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. 16. बताने का है किसी को? No, sir. Yes, sir. सॉरी, बताने किसी ने हाँ बोला? Yes, sir. Okay. In 2020, the ratio of tariff to number of existing users is 1:40. In 2020, when VPhone increased the tariff by 20%, the number of users decreased by 20%. In 2021, VPhone again increased its tariff pack by 10%. Number of users further decreased by 15%. Which of the following could be the current tariff among the choices? If tariff is always a natural number. अभी 2020 मैम टैरिफ कितना था? So 1. 2021 टैरिफ कितना हो गया? 1.2. 2022 टैरिफ कितना हो गया? 1.32. यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. टैरिफ इज अ नेचुरल नंबर, मतलब 1.32 तो नहीं हो सकता है। No, sir. अच्छा ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 132 अपॉन 100। Yes, sir. कैंसिल करेंगे, Hmm. यहां तक कोई दिक्कत? Okay, sir. No, sir. Don't you feel like tariff should be a multiple of 33?
बिकॉज योर टैरिफ इज 33k by 25 और k का ऐसा वैल्यू होगा जो 25 को कैंसिल करेगा, मतलब अल्टीमेटली 33 25 में कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, टैरिफ शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 33, हाँ या ना? हाँ सर सर। मल्टीपल ऑफ 33 या फिर मल्टीपल ऑफ मैं एक्सप्लेन कर 25? देता हूँ वापस से, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपका टैरिफ 33.25 हो सकता है क्या, बिकॉज इट्स अ नेचुरल नंबर। नो सर, अच्छा, 33 इंटू 2/25 हो सकता है क्या? नो सर, नहीं, तो 33 इंटू कितना करूँ कि हो जाए? मिनिमम 25। ठीक है, मैंने 25 की जगह मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो, अच्छा 25 से किया तो 33 आ गया, 50 से करूँ तो, 66, अच्छा 75 से करूँ तो, 99, अच्छा 100 से करूँ तो, 132। डोंट यू फील लाइक कि सारे 33 के मल्टीपल्स हैं? यस सर, टैरिफ इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 33 ओनली। यस सर, अगर 33 का मल्टीपल है तो ये हो सकता है, नो, ये हो सकता है, नो, ये हो सकता है, नो, तो शुड बी द करेक्ट आंसर। Which अंडरस्टूड सर। of the following could be? Have to solve it by options only. ओके सर। Shall I remove this? सर सर इसमें मतलब ये यूजर्स क्वेश्चन का कभी भी कुछ, थीटा, एक प्लीज, एक सॉरी। सॉरी 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 अब दोनों सब सॉरी क्यों बोल रहे हो, एक जना बोल लो। मैं बोल रही थी सर इसके अंदर यूजर्स का कुछ ज्यादा वो है नहीं ना इम्पोर्टेंस, जस्ट उसको चेक करने के लिए कि नेचुरल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, मैम कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं है ना? नॉट एट ऑल। अगर आपको ठीक है 33 के दो मल्टीपल मिल रहे होते ना, देयर वुड हैव बीन अ रीजन फॉर दैट कि अब अपन यूजर पे जा सकते हैं। जब तक 33 का एक ही मल्टीपल है, वी डोंट नीड टू केयर अबाउट। राइट राइट, ओके सर। एनीवन एल्स? चारुल आप कुछ बोल रहे थे? सर ये क्वेश्चन कभी भी मतलब थीटा में नहीं आ सकता। देखो आपकी किस्मत तो आपके पास है। सर किस्मत वाली बात नहीं, जब मैं बोल प्रैक्टिकली रहा हूँ पूछ विच ऑफ रही द फॉलोइंग कुड बी, और मैं पहली क्लास से एक बात समझा रहा हूँ, कैन या कुड ऑप्शन से ही सॉल्व हो सकता है, हूँ। तो ओके सर, ओके मतलब सर। डोंट यू फील लाइक अगर 660 इसका करेक्ट आंसर है तो 1320 भी इसका करेक्ट आंसर होगा ही होगा? हाँ डोंट यू फील लाइक हाँ 20 एक बार याद करे तो 1980 भी इसका करेक्ट आंसर होगा ही होगा? यस सर। सारे हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है इसके आपको सही वाला निकालने का, इनमें से कौन सा तो थीटा में नहीं आएगा, गारंटीड है 100%। ओके सर। कैन आई रिमूव दिस? यस Yes, सर, sir. सर। नेक्स्ट प्लीज। 19. किसी को बताने का है? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। नहीं हाँ है ना? नो ना। यस सर, यस सर, एक दो यस हाँ, सर। बस बस काफी था, समझ लो। फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, मतलब आपके पास सेट में क्या क्या अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ या ना? यस सर, 3 distinct prime numbers ABC are selected. Distinct है prime. You cannot take 1, you cannot take 4, you cannot take 6, you cannot take 8, you cannot take 9. आपके पास बचा 2 3 5 7, क्लियर है? यस सर, और डिस्टिंक्ट लेने का है फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a square plus bx plus c equal to 0 having real root. रियल रूट्स कब होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इक्वल्स टू। सो b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, हाँ या ना? यस सर, अगर कितनी केसेस बन सकते हो बताना है, मैं b को मिनिमम कितना रखूं? 5 अरे 2 क्यों नहीं रखूंगा मैम? सर, सभी पहले तो बड़े आप पुट होंगे तो करके उसके ऊपर। देखेंगे मैम, आपको पता हाँ है ना, सर, बाकी अच्छा मुझे पता है, b को 2 लिया तो अच्छा। b स्क्वायर हो गया 4। अब यहाँ पे यस a सर, और c को कुछ भी रख दो, 4 इंटू एनीथिंग। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका 4 है, राइट हैंड साइड 4 से बड़ा है, और ये बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, ये पॉसिबल है क्या? नो सर, मतलब b को 2 तो नहीं ले सकता हूँ, चलो आगे। यस सर, b को 3 लेता हूँ, तो मेरे को चाहिए 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू मिनिमम a को 2 और इसको मिनिमम 5 तो देना ही पड़ेगा। ये पॉसिबल है क्या? नो सर, b को रखता हूँ 5, तो 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3 पॉसिबल है क्या? यस सर, यस सर। Yes. अच्छा, और कुछ पॉसिबल है? 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 7,
No, sir. मतलब एक ही No, केस sir. पॉसिबल है। बी को मैं 7 रखता हूँ, तो 49 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 4 इंटू 2 इंटू 5, हाँ या ना? Yes, sir. 4 इंटू 3 इंटू 5, हाँ या ना? No, sir. नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दो केसेस पॉसिबल है। 4 इंटू, अच्छा बी को 7 तो ले, दो केसेस। यहां तक कोई दिक्कत हुई? No, sir. No, sir. ये जो है ना, ये 2 और 3, इसमें ए कौन है, बी कौन है? ए और सी, सॉरी, ए और सी कौन है? कोई भी। एक बार ए को 2, सी को 3, एक बार ए को 3, सी को 2, तो टोटल केसेस इंटू 2 कर दूं? Yes, sir. कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं तो आगे चलिए। No, sir. Anyone नो else? सर। No, sir. पक्का चल सकता है आगे? जी सर। नेक्स्ट प्लीज। 2020 सॉरी, 2020 20। बताना है सर। बताना है। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। Aman Bhaskar takes A and B days to complete a task. If they take their turns to work independently on the job, on alternate days, the task is completed in 8 days. Total work कितना ले लूं? 40 8 A भी ले लूंगा? ले लो सर। चलो 40 लेने की इच्छा है आपकी, 40 ले लो यार, आपने बोल ही दिया 40। हाँ। यार 8 A भी से इजी हो जाएगा, बट ठीक है। इट शुड बी डेली का 40 बाय ए, 40 बाय बी, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अगर ये ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं तो 8 दिन में काम हो गया, इसका मतलब 4 दिन तक ए ने काम किया होगा, Yes, sir. प्लस 4 दिन तक बी ने काम किया होगा। Yes, sir. Yes. 40 एलसीएम लेके काट दो। 4 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी इक्वल टू 1। Yes, sir. 4 ए प्लस 4 बी इक्वल टू ए बी। फोर इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। No, sir. नहीं। Sir. आगे दे रखा है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 20, इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 80 हो गई, Yes, यस सर। sir. और ए बी इसके इक्वल है, मतलब ए बी ग्रेटर देन 80 हो जाएंगे। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. यार इसके बाद इसका कोई तरीका नहीं है, इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। बहुत सारे केसेस बैठ रहे हैं। मेरे को एक चीज तो समझ में आ रही है, वो ये है कि ए और बी मेरे हिसाब से डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं, लेकिन फिर भी ए और बी नहीं होना चाहिए। ये सॉरी, सर मैं ऐसे पूछ रहा था कि इसमें हिट एंड ट्रायल में कहाँ तक लेके जाएंगे अपन? कोई लिमिट नहीं है। तो सर इसमें तो सर ऑप्शन ये तो क्वेश्चन ही फिर नहीं हुआ कुछ। मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। आई टेल यू द रीजन फॉर दैट। सपोज आपने दोनों को 10-10 लिया, कंडीशन ट्रू हो रही है क्या दोनों? नो सर। नहीं, Yes. क्योंकि ग्रेटर देन 10 लेना है। 10-11 लिया, कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? सर हाँ, मैं ऐसे कह रहा था, जैसे इसमें कह रहा है कि ये भास्कर स्लोवर है, हाँ,
तो अपन बी की ऐसी वैल्यूज पुट करें जो अपनी ऊपर इक्वेशन में भी हो जाए, जहाँ पर वो बी लिखा हुआ है ना ऊपर, वहां भी सॉल्व कर जाए। जैसे 40/b है यार तो उसको भी इंटीग्रल देंगे। मुझे एक बात बताओ, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो डेली का यूनिट्स जो निकाल रहा है वो इंटीग्रल ही आएगा। क्वेश्चन में तो ऐसा बोला ही नहीं है ना कुछ। हाँ समझ रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मेरा पॉइंट इतना सा है कि जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है तो फिर अपन क्यों अज्यूम करें उस चीज, समझ गया। वो सर दिक्कत है। यस मैम। अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड स्क्वायरिंग करते तो चेंज नहीं होता ना साइन। होता है मैम, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। ग्रेटर सपोज देन वन हो सपोज मतलब। सपोज हाँ, ग्रेटर अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। हाँ, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज वापस से स्पेसिफाई करता हूँ। इफ यू से -3 लेस देन -2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 9 4, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। हाँ वो तो है। ओके। ठीक। तो यार मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ बेटर टू स्किप अ क्वेश्चन लाइक दिस। इट वाज प्योरली अ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत एम्बिगुअस सिचुएशन में लाके अपने को छोड़ रहा है और आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इन दो सिचुएशंस के बेसिस पे प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे सॉल्यूशंस बैठ रहे हैं। अगर ए बी ग्रेटर देन ए प्लस बी ग्रेटर देन 20 और ए बी लेस देन 80 होता ना, तो भी लिमिटेड सॉल्यूशंस होते। ए प्लस बी को मैं बता रहा हूँ 40 × 40 क्यों आंसर नहीं हो सकता? सही तो है, ए प्लस बी 40 + 40 20 से ज्यादा है, और 40 × 40 भी 80 से ज्यादा है। 80 × 80 100 × 100 सब कुछ पॉसिबल है इसके लिए। क्लियर है? सर अगर ये ऑप्शंस में होता तो अपन ऑप्शन से ट्राई करते। 100% ऑप्शन से ट्राई। समझो, मेरे को जैसे ही बी का वैल्यू पता फिर तो मैं वैल्यू पुट करके क्या निकाल ही सकता हूँ ना, फिर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं मेरे लिए। हाँ क्योंकि तब तक है जब तक ए और बी दो वेरिएबल हैं और दोनों इनइक्वालिटी आ रही है, एक भी इक्वेशन नहीं आ रही। ठीक है सर। Shall we go ahead? Yes, यस sir. सर। Purely a wrong selection of question shouldn't have been selected. Next, 21. बताने का है किसी को? हाँ सर। Yes, sir. एक लेंथ भी बहुत गया था। नहीं, लेंथ भी तो जाएगा। किसी को आया नहीं तो पूछ लीजिए। नहीं आ गया था। किसी को भी नहीं बताना है? सर बता दो एक बार, नहीं बताना है सर। हाँ सर बताएंगे। A group comprising some women and men can complete a piece of work in 96 days. Men X है, women Y. If a man in the group is replaced by a woman, the resulting work can be completed. The resulting group can complete the work in 72 days. If two men in the original group are replaced by two women, in how many days can the resulting group complete the work? डेली का ए यूनिट्स करता है, डेली का बी यूनिट्स करता है, तो मेरे हिसाब से पहला इक्वेशन ax + by = 96 नहीं, टोटल वर्क 96 और 72 का एलसीएम कितना होता है भाई? 288। हाँ क्या? Yes, sir. ये अगर 96 डेज में काम कर रहे हैं मिलके, मतलब डेली का 3 यूनिट कर रहे थे। यस सर। Yes, sir. अब अगर एक मैन को हटा दिया तो इट विल बी a × x - 1 प्लस एक विमेन को रिप्लेस बाय अ विमेन, एक विमेन को बढ़ा दिया b × y + 1। तो अब ये 72 डेज में कर रहे हैं, मतलब डेली का 4 यूनिट कर रहे हैं, है ना? Yes, sir. Subtracting the two equations, I'll have ax से x कट जाएगा, माइनस a, इसमें नीचे वाली में से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, by से by कट जाएगा, b = 1, है ना? Yes, sir. अब ये बोल रहा है if two men in the original group
are replaced by two women. So y plus 2. तो डेली का के यूनिट करेंगे, कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे वो बताने में। ठीक है, अब एक छोटा सा काम करो आप, ये वाली इक्वेशन आपके पास है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, -2a + a माइनस ए, बाकी तो कट गया, 2b - b, b हाँ है ना। Yes, sir. अब b - a का वैल्यू आपको 1 पता था, तो k कितना आ गया, हाँ है ना। यस सर। यस और सर। अगर ये डेली का 5 यूनिट कर रहे हैं तो 288 के लिए कितना टाइम लेंगे, 57 point. 57.6. हाँ है ना। Yes, sir. यस तो दिस इज समथिंग यू कुड हैव अटेम्प्टेड। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था वरुण, इससे ज्यादा लेंथी हो रहा था या कम लेंथी हो रहा था? सर, ज्यादा ही जा रहा था, वो पूरी इक्वेशन बनाई थी इक्वल करके। सही है, हाँ सही है सर। और छोटा करना है? नहीं नहीं, नहीं तो है एक तरीका हो अपने सक पास। हो सकता है क्या सर वैसे? हाँ, बता दो फिर। छोड़ दो। अरे मेरे को पता ही था। तो फिर क्यों पूछा था? नहीं सर, इतना बहुत। सर लालच बुरी बला है ना, इसलिए पता। क्या? लालच है ना, इनको लालच। आगम चुप रहा कर। हाँ Shall we go ahead with the next one? Yes, sir. यस सर। बताइए नेक्स्ट। अरे आगम, 13 सर। बता रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, होता है। सॉरी सर। पार्ट 2 का 13। बताना है किसी को? नहीं सो इसके अंदर आपने आई गेस ऐसा बताया हुआ है कि वैल्यूज पुट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, बट मैंने सर मुझे इसके अंदर वैल्यूज डिसाइड नहीं हुई। मैंने आपको ऐसा बताया था, सॉरी। मैंने आपको बताया था ऐसा। हाँ मतलब अपने क्लास में ही एक बार बताया था कि ऐसे टाइप के किस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चंस में वैल्यू। मैडम सॉरी, बताइए, किस क्वेश्चन के लिए बताया था? इस क्वेश्चन के लिए नहीं, स्पेसिफिकली ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन जिसमें ऐसे कांस्टेंट दिख रहे हो, हाँ ऐसा करके बताया था। यार, कोई बता पाएगा कि इसमें क्या और वैल्यू होती है? कंडीशन। -2 - 1। सर हाँ, x और y की वैल्यू पुट करके z की निकाली रिलेटिवली। कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कि तुमको -2 - 1 कैसे पता चली? सर हिट एंड ट्राई, 2 to 1 करा था, फिर -2 - 1 करा तो बैठ गया। अरे बढ़िया बढ़िया। तो आपने ये भी बोला था कि इसके अंदर सेम वैल्यूज नहीं लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। बट स्पेसिफाइड नहीं है। मैं इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता हूँ आपको, आपका क्वेश्चन है मैडम, जो इच्छा है अज्यूम करो। जब तक सामने वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, आपकी जो इच्छा है लेने का लो। आपकी इच्छा है 1.3, 7.9 और 6 पॉइंट समथिंग ले लो तो ले लो, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करो। बाकी आपका मैडम, आपका क्वेश्चन है, जो करने का करो, कोई रोकने वाला नहीं है। ओके। देखो, एक तरीका है जो वरुण ने बताया कि -2 - 1 ले लो, लेकिन सबको ये बात स्ट्राइक कर जाए, दैट्स अ डाउटफुल सिचुएशन, ऐसा नहीं होने वाला है। तो एक तरीका चारुल ने बताया कि z की वैल्यू निकाल लो। तो ऐसा बोल रखा है xy + yz + xz = 0। चलो z का वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे आ जाएगा हिसाब से -xy / x + y। यही आ रहा है? सर x और y की वैल्यू अज्यूम कर लीजिए ना। यस सर, x y के assume। हाँ, अज्यूम करेंगे। मैं पहले z को xy के टर्म्स में तो लाऊं। अच्छा, ओके सर। मैं यही बोला था यस सर। कि आप z को xy के टर्म्स में ले आओ और x और y की वैल्यू अज्यूम कर लो। ठीक है, हाँ अब जी। इसके बाद आपकी जो इच्छा है बोलो, क्या लेने की इच्छा है x को? सर कनन, 1 लेके इजी हो रहा 1 है। 1 कनन वन x 1 y को क्या लेना चाहते हो मैडम? 2।
तो z कितना हो गया? -2/3। ठीक है, ओके अब ये वैल्यूज पुट कर दो, you'll get the answer. ओके। अच्छा मतलब ऐसा स्ट्राइक ना करे तो इक्वेशन को शॉर्ट कर। बराबर। लेकिन अगर गॉट इतना इट सर। हो गया था तो वरुण की वैल्यूज कंसिडर कर लेते, मेरे हिसाब से इजी रहता। 2 ले लेता हूँ, -2 बोल रहे थे, 2 बोल रहे थे, 2 ले लेता हूँ, कुछ तो बैठेगा। -2 -2 मैं 2 2 ले पे नहीं लूँ। बैठेगा। बिल्कुल सर, लो सर। सर 2 और -2 लेते हैं ना तो माइनस माइनस हट जाएगा, एक z पॉजिटिव आ जाएगा। क्या दिक्कत है मैडम? x को 2 लो, y को 2 लो, z -1 आ जाए, कोई दिक्कत? नहीं। उठा के यहाँ पे लाओ और यहाँ पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा मैम, मैं करके बताऊं? यस सर, हो जाएगा सर। So the better is कि या तो आप वैल्यूज दिमाग से सोच सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो एक वेरिएबल को बाकी दो वेरिएबल के टर्म्स में ले और बाकी दोनों को अज्यूम करो, जिससे तीसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो पाए। क्लियर है? सर यस ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, मतलब ये था x5 + yz + zx = 0। हाँ, तो xy की वैल्यू क्या आ सकती है, मतलब माइनस का yz वो फिर उधर जाके पुट कर दो, मतलब yz + zx = -xy हुआ, तो जैसे लास्ट वाला था ना zx -xy में उधर जाके पुट कर दो, लास्ट में कॉमन आ जाएगा, फिर वैसे ही किया था मैंने तो। कर सकते हैं 100%। सर देखो, मेरे को केवल एक छोटी सी दिक्कत है, आप मुझे ये बताइए कि आपका एल्जेब्रा स्ट्रांग है या अर्थमेटिक स्ट्रांग है? सर अरिथमेटिक है, पर ये अलजेब्रा लेकिन ऐसा भी नहीं एल्जेब्रा करता। और अर्थमेटिक में डिफरेंस क्या होता है, मुझे ये बताइए। इसमें लाइक पूरे वेरिएबल्स। एल्जेब्रा वेरिएबल पे ऑपरेट करता है, अर्थमेटिक हाँ नंबर्स पे ऑपरेट करता है, और अपना हाँ स्ट्रॉन्ग हाँ। पार्ट है नंबर्स, वेरिएबल नहीं है। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि वेरिएबल जितना हटा सकता हूं हटा दूं। आप जो बोल रहे हो वो एकदम प्रॉपर सोल्यूशन है, और लॉजिकली अगर इसको कोई करने बैठेगा तो वैसे ही कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसका। लेकिन हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि वेरिएबल हटा दूं ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू दिखे, वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। तो इसलिए मैंने ये सोल्यूशन बताया। बाकी हाँ आपका जो अप्रोच है दैट इज 100% करेक्ट। और अगर आप इसका कहीं पे सोल्यूशन गूगल भी करोगे तो आपको यही, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपने गूगल किया है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आप इसका लॉजिकल सोल्यूशन कहीं पे भी देखोगे ना तो आपको यही मिलेगा। क्योंकि किसी भी लॉजिकल सोल्यूशन में कभी भी ऐसा नहीं दे रखा होता है कि यार ये अज्यूम कर लो, वो अज्यूम कर लो। ये तो मेरा जुगाड़ है, कोई सा भी क्योंकि सर ऑथर मैंने कुछ भी भी जैसे लिख। वरुण की तरह ना। हाँ, वो तो वरुण की हाँ सर वैल्यूज तो बोलो। स्ट्राइक नहीं करेगी, मैंने पहले ही बोल दिया, इसलिए मैंने चारों वाले मेथड से किया। नहीं नहीं, मैंने अज्यूम करी थी, ऐसे आई भी थी, पर मेरा वो था कि एक्स वाई जेड तीनों अलग होने चाहिए, इसलिए फिर वो बैठ ही नहीं रहा था, सर मेरी जब तक वैल्यूज बोला सही ना थी ऐसे। जाए, जब तक बोला ना जाए, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। आपको ये भी नहीं बोला है कि नेचुरल वैल्यू चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, इंटीग्रल चाहिए, डेसिमल चाहिए, कुछ नहीं बोला है। तो आपकी जो इच्छा है ना वैल्यू, जब हाँ तक बोला ना जाए, बोल दे तो उस कंडीशन को देख लेंगे। ओके सर। ये ठीक है, shall we go ahead with the next one यस सर। यस Yes, sir. please? तो वो पार्ट 2 खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन था, 3 स्टार्ट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, बोलो नेक्स्ट। 1 1। बताने का है किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। पक्का नहीं, चले आगे। यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट 3 बताने का है किसी को? नंबर। यस सर। Let's check it out. N is a natural number such that it's between 300 and 600. P is the sum of n and the number formed by reversing its digit. The number formed by reversing of the digits of n is also a 3-digit number. P is equal to k times the sum of digits of n, which is 9. What is the minimum possible value of k? N is a natural number and n is between 300 and 600. Can I assume n equal to 100x plus 10y plus z because it's a 3-digit number? Yes, sir. Where यस सर। x and z both Yes. cannot be equal to 0 because इसका रिवर्स भी 3-digit का है, मतलब z भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। रिवर्स ऑफ n क्या हो जाएगा? 100z plus 10y plus x, हाँ या ना? Yes, sir. p is the sum of and the number formed by reversing the digit. इन दोनों को ऐड करो, 101x plus 20y plus 101z is equal to p, हाँ या ना? Yes, sir.
Yes, sir. The number formed by reversing the digits of n is also a 3-digit number. P is also equal to k times the sum of digits of n, which is 9. P equal to 9k. हाँ है ना? तो इसका मतलब तो ये है ना x plus y plus z is equals to 9. हाँ वो भी लिख रहा हूँ, बट P equal to 9k. अच्छा ओके सर. और एक बात आप मुझे बोल रहे हो x plus y plus z equals to 9, ये भी मैं लिख लेता हूँ. क्लियर है? चले आगे. यस sir. सर. यस सर. चलो अब कैसे करेंगे? Sir, ठीक है, hit and try. हिडन ट्रायल से ही होगा मैक्सिमम मिनिमम. चलो देखते हैं. ये दो इक्वेशन जो मैंने ऐड की थी, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो चल जाएगा क्या? चल जाएगा sir. Yes, sir. तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 99x माइनस 99y. 99 सॉरी सेट. और इक्वल टू पता नहीं कुछ भी. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. यार एक बात बताओ. एक्स 3 से बड़ा है, इसका 99 का मल्टीपल होगा. just allow me 1 minute. मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k बताना है ना. k को मिनिमाइज करना है. दिस इज k को मिनिमाइज करना है, तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा. डन, सॉर्टेड है. Sir, ये equals to में क्या है इधर? समझ गया समझ गया. इक्वल टू में कुछ भी नहीं लिखा अभी तक, हम्म. लेकिन सर ऑप्शन से करना बेटर नहीं होगा क्या? नहीं मैम, मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा. जस्ट वेटिंग फॉर अ मिनट. मैं एक बार चेक ही कर रहा हूँ कि बैठ रहा है. ओके सर. अच्छा, ये कितना हो गया? नहीं, 56. चलो ठीक है. हाँ मेरा डन है. अभी किसी को कुछ बोलना है तो कुछ पूछने का है तो पूछ लो, नहीं तो फिर विल गो अहेड मेरे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग. मतलब किसी का और कोई अप्रोच है तो बता दिया, फिर पहले मैं मेरा अप्रोच बता दूं. सर, मतलब वही लग रहा था कि आगे तो कि ऑप्शन रख लो. नहीं ऑप्शन मतलब देखो, ऑप्शन पे जाना मेरे हिसाब से एक सोल्यूशन है, लेकिन आई कैन गिव यू बेटर सोल्यूशन फॉर दैट. मैं एक बार वही ट्राई कर रहा था कि यार बैठ रहा है नहीं बैठ रहा मेरे को. लेट्स गो अहेड, सर देखते हैं. मैंने केसेस बनाए थे 9 डिजिट वाले, और Sorry? 9 जिनका सम है उनका. समझा नहीं मैम, वापस से बोलिए क्या बोल रहे हैं. सर मैंने ना केसेस बनाए थे, वो नंबर्स जिनका सम 9 है. ठीक है चलेगा. कैन बी वन ऑफ द वेज. मैं एक मेरा अप्रोच बताता हूँ, होपफुली विल वर्क आउट.
यार एक बात बताइए, आपको ये इक्वेशन दिख रहा है क्या? 101x हाँ प्लस 20y प्लस 101z इक्वल टू 9k। यस यस सर। एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए कि अगर मैं k को मिनिमाइज करना चाहता हूं, जिसमें मेरे को पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का सम 9 है, तो मैं x को बड़ा पुट करूं या y को या z को? सर वाई वाई को। y का कोफिशिएंट छोटा है तो y को बड़ा पुट करना पड़ेगा, यस सर। हाँ x और z को छोटा करना पड़ेगा। सर एक बार फिर से बताओगे क्यों y को? मैम क्योंकि अगर y की वैल्यू बड़ी होगी ना तो वो 20 से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन x की वैल्यू बड़ी होती है तो वो 101 से मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, ठीक है, गॉट इट। तो वाई को 7 और इसको 1 1। अभी अभी रुक जाइए। तो नंबर इज बिटवीन 300 एंड 600, x 1 हो सकता है क्या? नो सर। 2, नहीं नहीं। 3, यस। 3 हो सकता है। तो x को 3 ले लो, x 3 से छोटा नहीं होगा। z 1 हो सकता है, 0 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं सकता 1। हो सकता है हो हाँ। सकता है और अगर x और z ही आ गए तो y कितना हो गया? 5। 5। पुट भाई। करते हैं, 101 इंटू 3 303, 20 इंटू 5 100, 101 इंटू 1 101, ये हो गया मेरे हिसाब से 504, विच इज 9k, तो k इक्वल टू 56। दैट इज द करेक्ट आंसर। सर हाँ सर आप ये x इक्वल्स टू 3 पुट क्यों किया था? मतलब मैम 1 और आपका 2 के। आपका नंबर जो है ना वो 300 से 600 के बीच में, हाँ, तो इसका अच्छा। मोस्ट विजिट 3 से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है? और फिर सर, हाँ, फिर z1 कैसे किया? क्योंकि z 0 नहीं हो सकता है। ओके सर। ये देखिए मैंने लिख रखा। हाँ, ओके चले सर, आगे। गॉट सर यस मैम। सर जब मैंने ट्राई किया था बाद में, मैंने कैसे किया था, अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 है, तो हाँ मैंने y को x और z को y के टर्म्स में लाके मैंने इसमें पुट कर दिया था 101x प्लस 20y प्लस 101z वाली इक्वेशन में। तो लास्ट में मेरे पास x और z के टर्म्स में बच गया था, और फिर हिट एंड ट्राई लगाया था तो हो गया था। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा शायद। हाँ सर, टाइम कंज्यूमिंग था काफी। हाँ 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 तो हाँ। बस वो एक मेरे को दिक्कत लग रहा है, बाकी अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है। 100% वी कैन गो फॉर इट, कर बिकॉज दो सकते हैं ना। वेरिएबल है, 3 हाँ, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। हाँ सर, वही वही ठीक है। लेकिन लास्ट में हिट एंड ट्रायल ये लगेगा। हाँ हाँ, वो सर यही हुआ था, एक्स और जेड आ गया था एंड देन के को करना था तो मिनिमम, तो उसको मैक्सिमाइज कर दिया था। चलेगा मैम, अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी छोटी करने की कोशिश कीजिए, बाकी अप्रोच एकदम सही है। और ऑन द स्पॉट कुछ भी अपने को स्ट्राइक ना करे तो एटलीस्ट लेंदी अप्रोच से आंसर तो निकल जाए वाला केस है। सो बेटर यू कुड हैव हाँ अटेम्प्टेड इट, राइट? हाँ। क्लियर? एनीवन एल्स हैविंग अ डाउट? नो सर अगर नो बाई चांस 351 से नहीं होता, फिर आप लोग z की वैल्यू इंक्रीज कर करके करते क्या? सॉरी, कम अगेन प्लीज मैम। 3, अच्छा यू आर सेइंग दैट द नंबर इज 351, इससे नहीं बैठता तो क्या करते? हाँ जी। हाँ ठीक है, अब क्या होता मैम, आपने एक्स वाई जेड को ये पुट कर दिया, अब अगर नहीं बैठ रहा है तो मैं x को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं z को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। यस सर। समझे? व्हाट आई हाँ मीन जी। टू से इज कि इफ यू माइट हैव टेकन x को 4 1 और 5, ठीक है, तो द अदर नंबर वुड हैव बीन दिस। यस सर। इफ यू माइट हैव टेकन 3 5 2, द अदर नंबर वुड हैव बीन दिस। 5 3 हाँ। 5 5 5 0 6। अच्छा इसमें फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली विल डू इट कि अपन x को इंक्रीज नहीं करेंगे, y को z को इंक्रीज करेंगे। एक सेकंड में गलती कर गया, ये भी तो 4 होगा ना, ये भी तो 4 होगा, मतलब जो भी है यार, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, तो 5 8 5 एंड दिस इज 5 8। हाँ मैं वही बोल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम। समझ में आया? ओके सर। आगे वापस बताऊं? नहीं सर, हो गया। पक्का? Going ahead, next please. Shall I remove सर this? एक मिनट एक मिनट एक मिनट
एक मिनट। हाँ जी। यस नेक्स्ट प्लीज। 5 क्वेश्चन नंबर 5 बताने का है किसी को? हाँ नहीं। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. basic question, a wrong selection. You should have attempted it and would have got the answer for this. Anyways, मेरा selection गलत था. You could have gone with the correct selection. Next, please. 6 बताने का है किसी को? No, sir. नहीं सर। Anyone? No, sir. Next, please. no sir 7 बताने का है किसी को? No, sir. no No, sir sir. नहीं। Next, please. 9 बताने का है किसी को? Yes, sir. हाँ सर। There were 30 quiz teams of 5 each. 30 quiz teams of 5 each. मतलब टोटल 150 मेंबर्स हैं आपके पास? आया ना? Yes, sir. And cultural teams of 4 each. तो 4n members हैं. Every student in a school is a member of 6 quiz team. मतलब ये गेटिंग इट कि ये जो 150 नंबर है ना इसमें ए ने 6 बार पार्टिसिपेट किया है, बी ने 6 बार पार्टिसिपेट किया है, सी ने 6 बार पार्टिसिपेट किया है. मतलब एक्चुअली मेरे पास 25 बच्चे थे शायद. यस सर। क्यों सर? फिर वो फॉरेन बच्चे भी तो थे अपने पास और। नहीं ना, वही बच्चे हैं जो Yes. क्विज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही बच्चे हैं जो कल्चर में भी पार्टिसिपेट कर ओके, मतलब ये उसी का पार्ट है फॉरेन। रहे हैं. सॉरी, फॉरेन 150 का ही पार्ट है ऐसा? 150 स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट 25 हैं. नहीं समझे? नहीं सर। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम अपने पास 5 बच्चा है, ए बी सी डी ई. हर बच्चा 4-4 इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा. टोटल कितने पार्टिसिपेशन आ गए आपके पास? 20। 20. और मैं बोल रहा हूँ आपने 2-2 मेंबर्स की टीम बनाई, मतलब कितनी टीम्स बन गई? 10। 10 टीम. अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलते हैं. 10 टीम्स थी 2-2 मेंबर की, मतलब टोटल मेंबर 20 हो गए. हम्म। और हर बच्चे का 4-4 पार्टिसिपेशन था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 हो गए. अच्छा, हर टीम थी ठीक है। 5-5 मेंबर की और 30 टीम्स थी, यानी पार्टिसिपेशन हो गया 150. 150 राइट। और 150 में सबका 6-6 पार्टिसिपेशन था, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 25. 25 ओके, गॉट इट सर। इधर क्या हुआ? सबका 8-8 पार्टिसिपेशन था. 25 बच्चों का 8 पार्टिसिपेशन, मतलब टोटल हो गया 200 पार्टिसिपेशन. हाँ या ना? सर यस सर। आपने एक सेकंड, अभी आपने क्या बोला? आपका वॉइस ब्रेक हो गया। मैं बोल रहा हर हूँ बच्चे का 8 पार्टिसिपेशन है, हम्म 25 बच्चे हैं, हम्म 200 पार्टिसिपेशन हो गए. हाँ ओके। और 200 पार्टिसिपेशन में हर टीम 4-4 मेंबर्स की है, तो हम्म मतलब 50 टीम बनाई होंगी आपने. ठीक है, कोई डाउट है तो बोल गॉट। दीजिए. Anyone? No, sir. नो सर। Shall I remove this? yes sir यस सर। Next. 10 बताने का किसी को? No, sir. no sir नो सर। अच्छा एक बात जेन्युइनली बताओगे क्या? अबे हाँ बोलो. Yes, sir. पूछो सर यस सर। मतलब सही में तुम ये डर की वजह से नहीं पूछते हो क्या ज्योमेट्री के क्वेश्चन, या तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है? एकदम सही वाली बात बताओ, जोक्स अपार्ट, मजाक को छोड़ने का.
सर अभी आता ही नहीं है तो क्या सर पूछा? आती तो सर मुझे ये चैप्टर नहीं वाला किया हुआ जानना तो सर आता ही नहीं है। क्या मतलब, मेरे को कई बार लगता है ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर ये देखो, ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ था, बाद में ट्राई किया था। क्या ग्राफ बनाना आता है क्या तुमको? हाउ मेनी पॉइंट्स यस ए एंड सर। बी आर होल नंबर्स आर ऑन और इनसाइड द रीजन एक्स एक्सिस? ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 5, ये आपका एक्स इक्वल टू 5 बराबर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स इक्वल टू 5 तो सबको बनाना आता होगा कि ये जो x यस इक्वल टू 5 वाला यस पॉइंट है तो सर। सीधी लाइन खींचो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाएंगे? सर सर पैराबोला 0 बनाना। 0 से शुरू x को करेंगे। 0 पुट करो, y कितना है? 0 0 0 x को 1 पुट करो, y कितना है? 1 1 1 x को 2 पुट करो, y कितना है? 4 4। फिर x को 5 3 पुट करो, 9 9 4 पुट करो, 16 16 5 पुट करो। 25 मतलब ये ऐसा कुछ ग्राफ आया है। यस सर। आपको पूछा है रीजन पे या फिर अंदर कितने पॉइंट्स लाया करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं 1, ये 1,1 है और ये 0,1 है। कितने पॉइंट्स हो गए जो ऑन द जो होल नंबर्स है? सर नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैम, हाउ मेनी पॉइंट्स a कॉमा b की फॉर्म में वेयर a एंड b आर होल नंबर्स, गेटिंग इट, आर ऑन और इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय दीज थ्री कर्व्स। ये जो आपका कर्व आ रहा है ना, ये कुछ ऐसा आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक जाके यहां तक इस पूरे एरिया में कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो होल नंबर्स की फॉर्म में है? मतलब सपोज इफ यू आर हैविंग अ पॉइंट लाइक 3,5, so this is to be counted because both 3 and 5 are whole numbers. ओके सर। समझ में आया? हाँ जी। यस यस सर सर तो हाँ 1,1 0,1 को 4 पॉइंट्स मानेंगे ना? मैम, पॉइंट तो दो ही हुआ ना, एक और एक दो। अच्छा एक ही मानेंगे, ओके। सबसे पहले 0 वाली लाइन में 1 पॉइंट मिला, यस 1 वाली सर। लाइन में कितने पॉइंट मिले? 2 2 दो। अच्छा, 2 वाली लाइन में ये है आपका 0,2 और मेरे हिसाब से ये आपका है कितना? 2,4 2,4 इट शुड बी जब वो उल्टा। 0 कॉमा 2,0 2 अरे हो कॉमा गई गलती मालिक, यार हो गई थोड़ी उम्र, भूल जाता हूँ छोटी मोटी चीजें से, क्या तुम गुस्सा करने लग जाते हो। 2,0 से 2,4 तक जा रहा हूँ, कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं 4 पॉइंट्स। मैडम? 5, 0 से 4 तक जा रहा ओ सॉरी सर। हूँ। 3,0 सर से, हाँ सर 2,4 तक के क्यों गए? मैम उसके आगे तो कर्व खत्म हो गया ना, ये वाला एरिया तो आपको काउंट ही नहीं करने का है ना, अच्छा ओके आपको केवल ये वाला एरिया काउंट करने का है ना। सर पर इसमें आपको 4 कैसे, हाँ बट 4 कैसे पता चला कि वाई पे फिर 4 ही होगा? अच्छा ओके सर। तो 3,0, एक चीज मुझे भी पूछनी है, ये आप 5 पॉइंट्स कैसे अरे निकाल यार रहे हो? मूड खत्म कर देते हो रे यार तुम लोग, यार ऐसी चीजें छोड़ दो यार, अगले सर क्वेश्चन पे आ गया समझ, सिर्फ ये पॉइंट्स कैसे निकला आपका 5? कौन सा 5? x इक्वल टू 5? नहीं कि इनके बीच में 5 पॉइंट्स हैं। मैडम 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। ओ अच्छा ऐसा। यस ठीक है मैम, आगे। मजा आ गया? यस सर। बढ़िया। 3,0 से 3,9 तक, कनन अब आप ही बताइए कितने पॉइंट्स होंगे? सर 10 बढ़िया। 4,0 से 4,16 तक 17 17 और 5,0 से 5,25 तक 21 20, 6 26 और 17 कितना होता है? 43, 53, 58, 61। 61 समझ में आ गया? हाँ ना बोल दो, समझ में आया? यस सर। यस सर। डिफिकल्ट था क्या? नो सर। सर अरे था, ये तो मैंने बता दिया तो इजी हो गया ना।
सही बोल रहे हो सर। मैं सही बोलता हूँ। देखो बात ऐसी है, ज्योमेट्री में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है, ज्योमेट्री का नहीं सिखाया है। सो बी वेरी स्पेसिफिक नेक्स्ट टाइम। अगर आप गलती से दिमाग में सोच लियो ना कि यार ज्योमेट्री तो इजी होती है, सर ने बता दिया, कर लेता हूँ नेक्स्ट टाइम, तो ज्योमेट्री तो भूल के भी मत उठा लेना, कोऑर्डिनेट का एक बार फिर भी सोच लेना, ज्योमेट्री मत उठाना। समझ में आ गया? यस सर। चलो फाइन, आई होप वी कैन गो अहेड, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आउट प्लीज। 11 सॉरी 11 11 बताने का है क्या किसी को? नो सर। यस नहीं हो गया। सर। थोड़े कंफ्यूज्ड, हाँ या ना? हाँ। So, बताना Yes, है। sir. ठीक। Ashish had 100 rupees which he completely used to buy ABC quantities of toffees, chocolates and packets of them, each of which would cost him rupee 115 and 25 respectively. If he had bought at least 1 unit of each of them, the number of triplets possible is. बना के ही देखना पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं है मेरे पास। मैं इक्वेशन बता देता हूँ, A plus 15B plus 25C equal to 100। इस इक्वेशन पे कोई डाउट है? जिसने भी पूछा है, नॉट श्योर किसने पूछा है। अबे किसने पूछा था? नहीं सर, नहीं। इस इक्वेशन पे कोई डाउट है सर? नहीं। नहीं। अब सी को मिनिमम कितना दे सकते हो छोड़ने का? सी को मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 1। 1। मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम। सर 4। 4 दे सकते हैं? 3। 4 क्यों नहीं पर दे सर सकते? सबको एक एक देना है तो 4 बराबर, नहीं तो सी चलेगा। 4 नहीं होगा, सी मैक्सिमम होगा 3। अब कितना बचा? ए 3 प्लस बी मिला के, ए प्लस 15 भी मिला के कितना बचा? 25 25। बी को मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 2। सर कैसे इधर दे नहीं दोगे? पाएंगे। सर सी को मैक्सिमम 5 कैसे दे दिया आपने इधर? अरे सी यार इक्वल्स टू सॉरी 5। यार, बोल रहा हूँ ना, थोड़ी सी हो गई, उम्र हो गई, लिखने में हो जाती है गलतियां। मजाक नहीं कर रहा, डिनर नहीं किया भाई सुबह से। अरे दीक्षा, खाना खा लिया क्या? नहीं सर मैंने भी नहीं किया मैडम झूठ मत डिनर बोलो, सच सुबह वाली से। बात बोलो। सच वाली बात बताओ, सर झूठ नहीं। सच्ची में सर ये यहाँ तो मेरे को बनाना भी पड़ता है, मैं अभी आके कब बनाती। सर ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाती है सर, प्लीज। तुम मत देखना, मेरी रिकॉर्डिंग जा रही है, तुम्हारी क्या जा रहा है? अरे सर मैं बोल रहा हूँ सर। अच्छा, अभिषेक से देखे, सॉरी। चलो, सी इक्वल टू 3 समझ में आ गया? यस सर। अब बी को मैक्सिमम कितना पुट कर सकते हैं? सर 1। नहीं 1। कर सकते। सर 30 हो जाएगा फिर। हाँ, और 25 बचा है, तो बी को 1 ले लो, और ए कितना जाएगा? सर 10। चलो, एक सोल्यूशन तो ये मिल गया। इसके बाद सी को कितना पुट कर सकते हैं? 2। तो अब कर करके देख लूंगा सर मैं, अगर मेरा ही डाउट है मेरे पास भी वही सोल्यूशन है, इसका हिट एंड ट्राई के अलावा कुछ नहीं होगा। 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन में कुछ नहीं बैठ पाएगा। ओके सर। चलो अगले पे चले। यस सर। Yes, sir. बोलो। 12 हाँ, 1 बताना है किसी को? नहीं सर। वो सर No, sir. नो सर। नेक्स्ट प्लीज। सर 15 15। बताने का है किसी को? 25 नहीं। No, sir. सर। नेक्स्ट प्लीज। 17 बताने का है किसी को? No, sir. Good. हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? 18 Sir, sorry, वो ये 15 बहुत इजी है, हो गया था। अब एक एक करके। वरुण कुछ बोल रहे हो? सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये वाला बहुत इजी है, हो गया था। अच्छा, हो गया था। चारुल, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, वो बोलिए। 15th में अपन वो साइड्स वाला जो लगाते कि एक कुछ बार, एक सेकंड। ओके 15th में बोल रहे हो क्या? हाँ बोलिए, मैम खोल दिया 15 क्वेश्चन।
सर 15th में इसको डायगोनल से कट करके ऐसा ट्रायंगल बना के वो मैम तीन साइड का जो अपन को दे रखा है वो कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लूं, मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया। इन अ अच्छा क्वाड्रिलेटरल ABCD AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, AB दे रखा है, AO दे रखा है, OB दे रखा है, BC AB दे रखा है, AO दे रखा है, OB दे रखा है, ठीक है, BC दे रखा है, OC दे रखा है, ओके, OD दे रखा है, ओके, CD दे रखा है। It is given that the dimension of one of the dimensions out of AB, BC and CD is incorrect, while all the other dimensions are correct. हाँ, अब आप यस क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, इसमें वो अपना कोई रिलेशन होता है ना तीनों साइड्स के बीच में कि उनका सम तीसरी से बड़ा या छोटा जो भी है वो लगा के करेंगे क्या? मोस्ट प्रोबेबली यस, मेरे को भी एक बार बना के देखना पड़ेगा, बट हाँ यस, वो ही लगना चाहिए मेरे हिसाब से। सर वो रिलेशन क्या होता है? मैम, दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए और दो का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। ओके सर। करके बताऊं? नहीं नहीं, मैं ट्राई चलो, करती हूँ। पूछना है, अभी पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको सेपरेटली पूछ लेने का। यस सर, नहीं अभी मत बताओ। नहीं, नेक्स्ट 17 पे था आई गेस वीवर। हाँ हाँ, सर 17 किसी को बताना है? सर बता दो एक बार। इसीलिए कोऑर्डिनेट नहीं बता देता, ज्योमेट्री भी चालू कर दी है। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC, ये लो। DEF is an equilateral triangle with DEF with its vertices DEF on AB, कुछ भी नहीं दे रखा क्या यार, और BC और AC, ये आपका DEF है, ठीक है। CFE 40 डिग्री है, CFE 40 डिग्री है, ठीक है। ADF 30 डिग्री है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल DEB? ये वाला एंगल आपको बताने का है, ठीक है। यस। चलो लेट्स फिगर इट आउट। ये एंगल कितने का होगा? 60 क्योंकि इक्विलेटरल इक्विलेटरल ये 90 हो गया, और अगर ये 90 हो गया तो ये कितने का होगा? 90 इट्स अ लीनियर पेयर, ठीक है। हाँ। अगेन दिस इज 90, दिस इज 60, this is 40, and we don't have any idea about other things. This is again 60, so this is 80, and if this is 80 तो ये एंगल हो गया 110, ये 70, अगर ये 70 है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, मतलब ये दोनों 55 एंगल इक्वल थे। कितने के हो गए? हाँ 55, 55। और ये भी 55। अब इस ट्राइंगल में आते हैं तो 90 आगे 55, तो ये हाँ 35। समझ में आ गया मैम? हाँ चले आगे। यस सर। Shall I remove this? यस सर यस सर यस सर। अबे किसका चालू है? सर 18 क्वेश्चन। Mr. Agam, please keep the background voices zero. हाँ सर, मेरे सर सही में नहीं था सर, मैंने कहाँ से बोल रहा हूँ आपसे, मैं कैसे बोलूँगा, आप बताओ कैसे करूँगा? Mr. Agam, it's clearly visible on my screen. The audio is coming from which name? सर वो मेरा माइक ऑन है इसलिए मैं तो आपको 18 बता रहा था, ठीक है, जाने देने का। सर सही नेक्स्ट, में मैं नहीं था अरे नेक्स्ट सर। 18 है। बताने का है किसी को? हाँ सर एक बार बता दो। देख लेते हैं मैम। Mod of x minus 1 minus mod x plus 2x plus 3 greater than equal to 2x plus 4, ये है, और x greater than equal to minus 10। कोई इसका क्रिटिकल पॉइंट्स बता सकता है? एनीवन? 0 1 और -3/2। 0 1 और -3/2, -3/2। ठीक है। Then हाँ the possible integral values, integer values of x is, केवल इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करने का। पहला x लेस देन -3/2 ले लूं क्या? हाँ सर। तो ये पॉजिटिव में खुलेगा नेगेटिव में? तो खोलेगा तो पॉजिटिव में ही। पॉजिटिव में ही होगा। नेगेटिव। अरे नेगेटिव में खुलेगा ना भाई।
एक्स, सर मॉड है तो पॉजिटिव में ही खुलेगा। अरे मैम सुनिए मेरी बात, यस मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप x इक्वल टू 1 वाला ब्रैकेट है ये एक्चुअली, हाँ इसके लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज में नेगेटिव नहीं खुलेगा और इसके राइट वाली सारी वैल्यूज में पॉजिटिव में खुलेगा। क्लियर है? अच्छा ओके सर। ये x इक्वल टू 0 वाला ब्रैकेट है, इसके लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव, इसके राइट में हमेशा पॉजिटिव खुलेगा। हाँ है ना? गॉट इट। ये 3/2 है, इसके लेफ्ट में नेगेटिव, इसके राइट में पॉजिटिव, मतलब लेस देन -3/2 में सारी ब्रैकेट्स नेगेटिव में ही ओपन होंगे। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं तो ये माइनस का प्लस x हो जाएगा और ये माइनस का 2x + 3 हो जाएगा और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 4। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं एक छोटा सा काम आप कर देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यूज निकालनी है। कंडीशन 2 है अपने साथ, x -10 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी -11 -12 ये सब नहीं ले सकता हूं। और दूसरी बात x, या तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ इस वाले पर्टिकुलर को, -x + 1 + x -2x + 3 -3 होगा ना सर। सॉरी -3 -2x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। -x + x काट दूं, हाँ -2x और -2x, -4x -7 नहीं -7 और +1 भी है, तो ग्रेटर -6 देन इक्वल टू +6 हाँ तो -3/2 -3/2 आ जाए। x लेस देन इक्वल टू -3/2। हाँ है ना? लेस देन क्यों होगा सर? मैम जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, जब इनइक्वालिटीज पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी मैं केवल हाँ समझा। क्लियर है? ठीक है। हाँ तो -3/2 से छोटा और -10, इसके बीच वाली वैल्यूज ले लूं, -2 3 4 5 हाँ 6 7 8 9। Accordingly, I'll put the values for this. I'll check out. I'll get the. ओके सर। चले आगे। यस यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 22। बताना है किसी को? एनीवन? यस सर। मैम इसका बेसिक आपको आइडिया है या एकदम जीरो से बताऊं? नहीं नहीं सर, रुको एक बार, वो मेरा स्क्रीन अब नहीं बताना सर अभी। यार इसका आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी पूछना था। पूछ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर इनमें से मिनिमम बताना है ना, सबकी में से, मतलब मिनिमम जो अपना होगा वो fx है अपना। अरे बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। किसी को पूछने का है? यस यस सर। ठीक है, पूछ लो, बताया था। कैट का क्वेश्चन है। कैट में कम से कम भी 2 या 3 बार तो आ चुका है। डिफरेंस ये है कि वहां पे 2 वैल्यूज देते हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज देते हैं। इस क्वेश्चन को एज इट इज देख के पहचान जाओगे क्या अगली बार? क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हो। क्या सर? इस क्वेश्चन को देख के पहचान जाओगे क्या अगली बार? हाँ यस सर। पहचान जाएंगे सर। यहाँ पे मिनिमम फंक्शन दे रखा होता है, यहाँ पे हम्म मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती है, या फिर यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन दे रखा होता है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी होती है। ये 2 ही क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मैं डिटेल्ड हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, केवल तरीका सिखा रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो दे दूँ, क्योंकि अभी उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा। तरीका बता दे। क्लियर है? यस यस सर। कुछ नहीं करने का है, वैल्यूज इक्वेट कर दो। 2x + 1 = x + 2। सॉल्व करके बताओ x कितना आ रहा है? 1 2x + 1 = -4x + 8। सॉल्व करके बताओ x कितना आ रहा है? 7/6। 7/6 सॉरी, x + 2 = -4x + 8। x कितना आ रहा है? 6/5। 6 by 5। x की 3 अलग अलग वैल्यूज आ गई। हम्म यस सर। यस सर। पुट करके देखो।
सॉरी सर। तीनों को पुट करके देख लो। जब x को 1 पुट किया तो ये कितना हो गया? 3 3 ये और 4। 3 और ये 4 4 आपको क्या करना है? इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। कौन सी सिलेक्ट करूंगा? 3 3 x को 7/6 पुट करो, कितना हो गया? 15। क्या बात नहीं कर नहीं, सॉरी सॉरी, 1 मिनट। 10/3 सर। पक्का? हाँ, हाँ सर। 10/3। ये कितना हो गया अगला वाला? 16/3 नहीं नहीं रुको सॉरी 14/6। 13 नहीं नहीं, अरे यार की कुल की 19/3 19/6 क्या चाहते हो यार? तुमको ये कैलकुलेशन नहीं आता क्या? मैं करूँ क्या? नहीं 10/6? सर 19/6 होगा अरे भाई सॉरी 13/6 होगा। कैसे 19/6 होगा यार? अच्छा अरे भाई 7/6 प्लस 2 13/6 नहीं होगा क्या? सर 6 सर 19/6 होगा ना। 19/6 हुआ ना। सॉरी 19/6। और इसमें पुट करो 10/3 आ रहा है शायद। 10/3 आ रहा है। मैक्स मिनिमम वैल्यू कौन सी है इनमें से? 10/3 नहीं। 19/6 मेरे हिसाब से उससे छोटा होता है, क्योंकि 20/6 होता है 10/3। हाँ है ना? यस सर। यस सर x को 6/5 पुट करो। 19/5। 6 to 12/5 17 ही तो है नहीं? हाँ 70। हाँ सर 17/5। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो सॉरी फॉर द होल्ड। लेट्स कंटिन्यू। अभी तक तो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली होंगी तुमने, जल्दी से बता दो सारी। 17/5, 16/5, वो भी 16/5 के आ रही है। मिनिमम कौन सी लूं? 16/5। दिस इज 3, दिस इज 3.16, दिस इज 3.2। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? 3.2। 3.2 ओके। अप्रोच समझ में आई? आ गई सर। अब मैंने ये क्यों सिखाई है उसका लॉजिक समझ। देखो मैं कई एडिशनल चीजें सिखा रहा हूँ इस टेस्ट में जो जनरली मैं नहीं सिखाता। देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट। फर्स्ट रीजन, जब कैट में ये क्वेश्चन आता है ना, जो अभी तक आया है वो मैं बता देता हूँ, वो होगा इतना सा, दैट्स इट। और वो बोलेगा आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू मुझे बताओ। आप क्या करोगे? 2x + 1 = x + 2, x = 1, x को 1 इधर पुट करा, आंसर आ गया 3, खत्म। दैट इज योर आंसर। कैट में इतना ही करना होता है। किसी को डाउट है तो मैं जब PYQs दूंगा तब एक बार देख लेना, मुझे भी याद दिला देना कि सर ये मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन आपने बताए। हाँ ठीक है? तो कैट यस पॉइंट, सर। I am telling you all these things because पता नहीं, I feel like at some point of time you have a phobia for functions. Sir functions करना है, functions करना है। Trust me, the day you'll be doing functions, you'll be like कि functions करना अलग बात है, functions के questions करना अलग बात है। And secondly, functions के question के लिए कोई pre knowledge नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग।
ऐसी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए कि टेक्निकल नॉलेज नहीं हुई तो मैं सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा. फंक्शंस इज मोर और लेस इक्वेशंस ओनली. तो इसलिए आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन, जब भी ऐसा दिखे कि ये मिनिमम फंक्शन है और इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, या फिर मैक्सिमम फंक्शन है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, अप्रोच यही रहेगी. अंदर जो वैल्यूज है उनको इक्वेट कर दो. इसका पूरा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दूंगा द डे विल बी डिस्कसिंग फंक्शंस, 100% दूं. लेकिन एज ऑफ नाउ ये क्लैरिटी चाहिए. क्लियर है? यस सर. So, anyone else having a doubt? नो सर. So, Was this the last question? 22 था ना लास्ट. ये 22 ये यार. हो गया सर कंप्लीट. हाँ सर वही तो. So finally with this we are done with the discussion of QA sectional test 11.